So this is exclusively for our partner doctors. पार्टनरशिप प्रोग्राम में जो हमारे साथ डॉक्टर्स हैं, ये उनके लिए एक्सक्लूसिव प्रोग्राम, एक्सक्लूसिव ट्रेनिंग हमने किया है. So those of you who are not from the partnership program, we will be sharing a link with you. तो आप उस लिंक से हमारा पार्टनरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, सो दैट हमारे ऐसे कोई भी आगे वेबिनार्स हों जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकें, आपको वो सारे वेबिनार्स आप फ्री ऑफ चार्ज अटेंड कर सकते हैं. So these webinars training sessions are completely complimentary for our partner doctors. So we will be sharing a link soon in the chat box through which you can join the partnership program. Let's just wait for 2 more minutes and then we can begin with the presentation. If you have any doubts regarding partnership program, please type your query in the chat box. We will respond to that. Okay, I will be beginning with my presentation in about 2 minutes. In the meantime, अगर आपके पास कोई questions हो regarding partnership program, आप chat box में type कर सकते हैं. Just a brief introduction about Nirok Street and our partnership program. So Nirok Street is an exclusively Ayurved-based community, a health tech platform only for Ayurved. Here, we are creating a community of Ayurvedic doctors through our partnership program, in which we support Ayurvedic doctors with purchase and delivery of medicines. Apart from that, we help them with content, which they can use it on social media to increase their reach. And such webinars like today's webinar, which enhances their clinical skills and overall clinic management practices. So today's webinar is actually more for new doctors or doctors who are into the years of practice from 0 to 3 years of practice. So this webinar is exclusively for them, but जो बाकी डॉक्टर्स हैं हमारे, जो थोड़े सीनियर डॉक्टर्स हैं, जो बहुत साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए ये एक रिफ्रेशर वेबिनार हो सकता है. So without any further ado, let me share my screen. Dr. Kirti, let me know when my screen is visible. Is my screen visible? Yes, your screen is visible, ma'am. Okay, great. Right. So I will be starting the webinar. So today we will be discussing how to consult patients in our clinic using Ayurvedic principles. आप में से बहुत लोग हैं जो आयुर्वेद की प्रैक्टिस करते हैं. आप में से बहुत लोग हैं जो जीपी भी करते हैं. बट आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स आप अपनी किसी भी प्रैक्टिस में यूज कर सकते हैं, इवन दो इट्स जीपी, इवन दो इट्स complete Ayurvedic practice. You can use these principles very easily. So the first and the most important thing is हम consultation में exactly क्या करते हैं? What do we do exactly when we consult a patient? So basically consultation ये जो process है, clinic में हो या online हो, जिसमें डॉक्टर पेशेंट से एक कॉन्वर्जेशन करता है, डॉक्टर क्रिएट्स अ बॉन्ड, अ गुड रैपो विद द पेशेंट, जिससे पेशेंट आपको ट्रस्ट कर सके
पेशेंट आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर कर सके, एंड देन डॉक्टर अंडरस्टैंड्स द सिम्टम्स, अंडरस्टैंड्स द प्रॉब्लम्स, डायग्नोसिस कंप्लीटली, और उसके हिसाब से डॉक्टर कैन प्लान अ परफेक्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट. This goes on for about half an hour on an average if you take a detailed history in a consultation. इसमें आयुर्वेद के प्रिंसिपल्स जो हैं, जो हमने अब तक हम यूज करते हैं, बट प्रोबेबली वी डोंट नो that we are using those principles in application. So I will be discussing them with you. So हमारे आयुर्वेद में हमें हमारे आचार्यों ने बहुत अच्छे टूल्स दिए हैं. We have been given accurate tools for a proper consultation and a proper outcome, like a proper reversal of disease. तो जो हमारे टूल्स हैं वो दो टाइप के हैं, दो चीजों में यूज होते हैं. एक है जो रोग की परीक्षा है और एक है जो रुग्ण की परीक्षा है, लाइक अंडरस्टैंडिंग द डिजीज एंड अंडरस्टैंडिंग द पेशेंट. जब हम ये दोनों चीजें एक साथ में करते हैं, दिस इज वेयर वी अंडरस्टैंड एंड दिस इज वेयर वी डू द एग्जैक्ट clinical comprehensive study, and there we can give a better outcome, better result for the patient. So हमें दोनों चीजें बहुत अच्छे से समझना बहुत जरूरी है, जिसमें रोग की परीक्षा और रोगी की परीक्षा, ये दोनों चीजें हमें करनी है. तो रोग परीक्षा में हम यूजुअली क्या करते हैं, हमारा निदान पंचक जो है, निदान पंचक को यूज करके हम ओवरऑल डिजीज अंडरस्टैंड करते हैं कि एग्जैक्टली इस डिजीज में क्या क्या हो रहा है, तो हम फाइनली संप्राप्ति तक पहुंच जाते हैं. उसके अलावा हम मैग्नीट्यूड ऑफ द डिजीज, नेचर ऑफ द डिजीज, मतलब उसका साध्य साध्यत्व देखते हैं. रूट ऑफ द डिजीज, की डिजीज का मार्ग कैसा है. अभी हर एक डिजीज के हमें पता है कि 3 मार्ग हैं, राइट. सो जैसे कि हमें पता है हिमाद्री टीका में अष्टांग हृदय के लिए जो टीका की है, उसमें हमने पढ़ा है कि देर आर 3 रूट्स, 3 pathways of a disease, जो बाह्य, अभ्यंतर और हमारा सबसे बेसिकली जो है कि हमारा हम बाह्य और अभ्यंतर जो डिजीज है, इसको हम ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, उसको यही हम कॉमनली यूज करते हैं. बट अपार्ट फ्रॉम दैट देर आर अदर मार्ग और अदर रूट्स ऑफ डिजीजेस, विच इज शाखा, कोष्ठन, मर्मस्थि, संधि, जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में या हमारे रेगुलर प्रैक्टिस में हमें इसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए. ओके. अपार्ट फ्रॉम दैट कॉम्प्लिकेशंस, मतलब किसी भी डिजीज की वजह से क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, वो भी हमें उसी डिजीज के डायग्नोसिस के टाइम पे ही पता चलने चाहिए, या तो हमें बैक ऑफ द माइंड वो ध्यान में रखना चाहिए कि इफ द डिजीज इज प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स एनी कॉम्प्लिकेशंस और नॉट. आपके पास जब कोई पेशेंट आता है तो आपको उस टाइम उस डिजीज का, उस व्याधि का कौन से स्टेज में वो व्याधि है, ये आपको समझना चाहिए. उस हिसाब से आप अपनी ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हैं. तो ये हुआ रोग की परीक्षा करना, डिजीज की परीक्षा करना. उसके बाद आता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट रुग्ण की परीक्षा करना, पेशेंट एग्जामिनेशन. So what happens during patient examination? ये जो हमारे द्विविध, त्रिविध, चतुर्विध, ये सारे जो हमें परीक्षण बताए गए हैं, ये हमने थ्योरी में पढ़े हैं, हमने एग्जाम में इसके लिए बहुत सारे आंसर्स लिखे हैं, बट इसका एप्लीकेशन हम कैसे करते हैं और इसका एप्लीकेशन करके हमारे पास हमें रिजल्ट्स कैसे मिलते हैं, दिस इज व्हाट वी विल ट्राई टू सी. बिफोर दैट लेट मी एक्सप्लेन अ लिटिल बिट अबाउट निदान पंच. सो निदान पंचक क्या है? निदान पंचक हमारा टूल है डिजीज एग्जामिनेशन के लिए, जिससे हम ये 5 जो टूल्स हैं, निदान पंचक 5 प्रकार के जो टूल्स हैं, जो जिससे हम निदान मतलब डायग्नोसिस कर सकते हैं, तो वो हमें यूजफुल कैसे रहते हैं. तो निदान हमें हेल्प करता है कि जो भी हेतु है, जो भी हमारे उस डिजीज के हेतु हैं, जैसे आप केस हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट की, तब आपको हेतु उसी वक्त पता चल जाती है. तो निदान मतलब हेतु, हम पॉजिटिव फैक्टर्स समझते हैं, दैट इज फर्स्ट. पूर्व रूप, जो उसके प्री प्री डिजीज के जो सिम्टम्स है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पता है कि यू आर टायर्ड, आपको ज्वर ज्वर आने से पहले जो पूर्व रूप लगते हैं कि थकान लगती है,
हाथ पैर दर्द होने लगते हैं, तो ये सारे आपके पूर्व रूप है, तो आपको उसी से पता चल जाता है कि आपको ज्वर आने वाला है, राइट। अगर आप उसी वक्त चिकित्सा कर लेते हैं तो मे बी ऐसा है कि ज्वर आता भी नहीं है। दिस इज पूर्व रूप। रूप जो है वो आपके सारे साइंस एंड सिम्टम्स है डिजीज के, जो मैनिफेस्ट होने के बाद आपके पास पेशेंट उसी वक्त मोस्टली आता है। तो जब रूप स्टेज में पेशेंट होता है तभी मोस्टली वो डॉक्टर के पास जाना चाहता है, क्योंकि तब उसको लगता है कि आई थिंक आई विल नॉट बी एबल टू हैंडल दिस, आई शुड गो टू अ डॉक्टर। तो आपके पास पूर्व रूप अवस्था में बहुत कम पेशेंट्स आते हैं, रूप अवस्था में सबसे ज्यादा आते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट नेक्स्ट इज उपशय अनुपशय। आप डिजीज को जैसे आइडेंटिफाई करते हैं, आपको कौन सा रोग है वो जब आप समझ जाते हैं तो उसके हिसाब से आप उसको चिकित्सा में यूज कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि उपशय अनुपशय आपको समझ नहीं आता है और आपको मतलब आपको सिर्फ 20% ऑफ द डिजीज उस टाइम समझ आता है जब पेशेंट फर्स्ट टाइम आता है, तो आप उस हिसाब से उसको कुछ दवाई दे देते हैं। मे बी ऐसा हो गया कि आउट ऑफ हिज 10-12 सिम्टम्स ओनली 5 वर रिजॉल्व, तो उस हिसाब से आपको आपका डिजीज का ट्रीटमेंट चेंज कर सकते हैं आप, उसके हिसाब से आप उसका पथ्य अपथ्य चेंज कर सकते हैं। सो दिस इज वेयर योर उपशय अनुपशय कम्स। देन संप्राप्ति। संप्राप्ति में आपको डिजीज के बारे में पूरी स्टोरी डिजीज की पता चल जाती है। मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको पता चल जाता है कि डिजीज में क्या हुआ है पेशेंट के साथ, पेशेंट को डिजीज का एक्सपोजर कैसे हुआ और अब उसके क्या सिम्टम्स है। सो जिसको हम मॉडर्न मेडिसिन में कंप्लीट पैथोजेनेसिस कहते हैं। सो ये 5 टूल्स अगर आप ठीक से समझ जाते हैं तो आपके लिए डिजीज को डायग्नोज करना बहुत इजी रह जाता है। ये आपको डिटेल में पढ़ने के लिए आई वुड रेकमेंड कि आप माधव निदान एक बार वापस पढ़ें और अपने एंड से उसको समझने की कोशिश करें। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स आप हमें ईमेल मैसेज कुछ भी कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू एक्सप्लेन दीज मोर, स्पेशली फॉर न्यू डॉक्टर्स। इसके बाद जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि रोगी परीक्षा। जो रुग्ण आपके पास आता है, आपकी क्लिनिक में आता है, आपको ऑनलाइन कंसल्ट आप करते हैं, तो तब आप पेशेंट एग्जामिनेशन में क्या करते हैं। तो ये बेसिकली स्टार्ट्स विथ योर केस पेपर। आपके लिए केस पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। द वे यू मेक योर केस पेपर इज एवरीथिंग टू अंडरस्टैंड आपको पेशेंट से क्या क्या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। अभी ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन है ये अब आई थिंक ये सबको ही पता होगा, फर्स्ट ईयर में ये सब हमने पेशेंट एग्जामिनेशन केस स्टडीज में किया है, जिसमें प्रकृति विकृति सार संवहन प्रमाण साथ में ये सारी चीजें हम समझते हैं, हम अंडरस्टैंड करते हैं। बट इसको अगर आप इसी हिसाब से केस पेपर में लिखोगे तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे और पेशेंट भी। So for this, some information is to be filled by the patient. आप उसके लिए एक केस पेपर अलग से बना के पेशेंट के लिए दे सकते हैं, जिसमें आप जो जिसको हम इंग्लिश में डेमोग्राफिक्स कहते हैं, डेमोग्राफिक डेटा, जैसे पेशेंट क्या करता है, उसका एज कितना है, वेट कितना है, ऑल दीज बेसिक थिंग्स कैन बी फिल्ड बाय द पेशेंट। तो ये आप समझ सकते हैं और ये पॉइंट्स आप अपने सामने लिख सकते हैं एक पेपर पे। जो नए डॉक्टर्स हैं वो रफली अपने सामने सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं, सो दैट जब आपके पास वॉक इन पेशेंट आता है तब आप ये सारे पॉइंट्स अपने सामने मेंटल नोट बना सकते हैं कि दिस इज व्हाट यू हैव सीन इन द पेशेंट। करेक्ट। जैसे कि अगर आपके पास कोई ओबेसिटी का पेशेंट आता है तो आप उसकी आहार शक्ति, उसके उससे जब क्वेश्चंस पूछेंगे, उसका डाइजेशन आप तब समझेंगे, तो उस हिसाब से आप उसकी आहार शक्ति और आप उसका अग्नि ये असेसमेंट अच्छे से कर सकते हैं उसके। बिकॉज ऑफ दैट यू कैन गिव देम द राइट डाइट, यू कैन गिव देम द राइट मेडिसिन, सो दैट विल बी हेल्पफुल। सो ये पॉइंट्स आपके बेसिक हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो हमारे आयुर्वेद के बेसिक त्रिविध परीक्षण है, सो मैंने आपके लिए कॉम्प्रिहेंसिव त्रिविध परीक्षण में ही अष्टविध परीक्षण ऐड किया है। सो जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, दर्शन स्पर्श और प्रश्न ये हमारे त्रिविध परीक्षण है। ये हम नोइंगली अननोइंगली ये हम करते ही हैं जब पेशेंट क्लिनिक में आता है तब। So the most important and the first thing what happens is darshan. This is a visual examination. This is applicable for both online consultation as well as clinic consultation. तो जब आपके पास क्लिनिक में पेशेंट आता है तब आप डेफिनेटली पहले पेशेंट को देखते हैं। आप इसी
इसी प्रत्यक्ष प्रमाण से आप इसमें से बेसिक चीजें आप समझ सकते हैं। मे बी आपको तब प्रकृति विकृति नहीं समझ आएगी when you look at the patient like in a visual examination, बट आपको ओवरऑल संवहन और या तो उसका प्रमाण, जैसे कि नॉट एग्जैक्टली कैलकुलेशन वाइज, बट अगर आपके यहाँ वेइंग स्केल है या आपके यहाँ पर मेजरिंग टेप है, तो आप उसका ऑर्थोपोमेट्रिक मेजरमेंट ले सकते हैं इफ यू आर स्पेशली प्रैक्टिसिंग फॉर डाइट और न्यूट्रिशन फॉर ओबेसिटी। उसके लिए आपको ये सारी चीजें ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके पेशेंट का वेट कम हुआ है, इंच लॉस हुआ है, अब विथ दैट उसकी हेल्थ इंप्रूव हुई है या नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए ये सब आप दर्शन परीक्षा में ही समझ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आप बल भी दर्शन परीक्षा से कुछ हद तक समझ सकते हैं। सो व्हाट ऑल कैन यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दर्शन परीक्षा? तो आप पेशेंट की बॉडी लैंग्वेज समझ सकते हैं, अगर वो कंफर्टेबल है, जैसे आपके पास कोई फॉर एग्जांपल बॉडी लैंग्वेज के लिए अगर हम एग्जांपल लें कि अगर पेशेंट को पाइल्स का प्रॉब्लम है या उसको फिशर्स का प्रॉब्लम है, दैट पेशेंट इज नॉट एबल टू सिट वेल, तो वो ऐसा ऐसा हिलता रहेगा कंटिन्यूअसली, और देयर माइट बी समथिंग वेरी अनईजी अबाउट द पेशेंट। तो ये सारी चीजें आप उसमें समझ सकते हैं। सो दिस इज बॉडी लैंग्वेज। जनरल अपीयरेंस आप ओवरऑल पेशेंट देख सकते हैं, खुश है या पेशेंट हेल्दी लग रहा है या बहुत ही वीक लग रहा है, तो ये आप जनरल अपीयरेंस से देख ही सकते हैं। विद दैट आप उसका अपार्ट फ्रॉम आर अष्टविध परीक्षण में से जो ये 3-4 पॉइंट्स हैं, ये आप उसी वक्त पर पेशेंट को देख के ही समझ सकते हैं, जिसमें आप उसकी जिह्वा, आप उसका नेत्र, त्वक, केश, ये आप समझ सकते हैं। सो दिस इज बेसिक, विथ वन लुक यू कैन अंडरस्टैंड कि आप पेशेंट को दर्शन परीक्षा में ये सारे पॉइंट्स आप नोट डाउन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट दर्शन में जो रिपोर्ट्स अगर पेशेंट के कुछ हो, कोई कुछ पेशेंट्स हैं जो अपने रिसेंटली ब्लड रिपोर्ट्स, सोनोग्राफी रिपोर्ट्स ये सब लेके आ जाती हैं, तो वो भी आप अपने दर्शन परीक्षण में वो अपने सामने देख के आप उसको कोरिलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी पेशेंट का हीमोग्लोबिन बहुत कम है, तो वो आप उसके जनरल अपीयरेंस से भी पता कर सकते हैं कि सच में उसका हीमोग्लोबिन कम है। आयुर्वेद के हिसाब से वो पांडु का कौन सा प्रकार अगर आपको लग रहा है तो वो है, तो वो आप दर्शन परीक्षण में समझ सकते हैं। नेक्स्ट इज योर स्पर्श। सो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका फिजिकल एग्जामिनेशन है। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर प्रत्यक्ष प्रमाण। तो इसमें आउट ऑफ अष्टविध परीक्षण आप क्या देख सकते हैं? आप नाड़ी देख सकते हैं, आप त्वक परीक्षण कर सकते हैं, आप उदर परीक्षण कर सकते हैं। आप में से कोई लोग जो पांचभौतिक चिकित्सा में अगर प्रैक्टिस करते हैं, तो उदर परीक्षण बहुत अच्छे से वहां पर एक्सप्लेन किया गया है वैद्यदाता शास्त्री में, तो आप उनका भी उदर परीक्षण का टेक्निक सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे आप समझ सकते हैं कि पाल्पेट करने से आपको टेंडरनेस, पेन सब समझ आ सकता है। सो फॉर दैट फिजिकल कंसल्टेशन में ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपको करना चाहिए। और एक एग्जांपल अगर हम देखें तो स्ट्रेट लेग रेज टेस्ट होती है, जो हम पेशेंट को लेटा के उसका पैर ऊपर करने के लिए कहते हैं। जिस डिग्रीज में वो ऊपर जाता है, हम उस हिसाब से उसका पेन का और उसका साइटिका का और नर्व का जो भी कंप्रेशन है, हम उस हिसाब से वी कैन अंडरस्टैंड। दोज हु आर डूइंग ऑर्थोपेडिक प्रैक्टिस मे बी दे कैन अंडरस्टैंड दिस मच बेटर, कि ऐसे कुछ टेस्ट है जो हमें करने पड़ते हैं टू अंडरस्टैंड दिस। विद दैट जो गायनेक प्रैक्टिस करते हैं या कोई स्पेसिफिकली एनोरेक्टल प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए पीवी पीआर करना तो बहुत ही लाइक रूटीन प्रोसीजर है। ईएनटी के लिए भी ये सारे प्रोसीजर्स बहुत कॉमन है, जो कि हमारे स्पर्श परीक्षण में आते हैं। विद दैट वी ऑल्सो हैव डायग्नोस्टिक टेस्ट। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट मतलब जैसे हमारे ब्लड सैंपल कलेक्ट करना है, यूरिन सैंपल कलेक्ट करना है, सो ये आप एग्जैक्टली स्पर्श परीक्षण से नहीं कर सकते, बट उसके लिए स्पर्श इज वन ऑफ द क्राइटेरिया विच इज नीडेड। देन द लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फ्रॉम दी थर्ड त्रिविध परीक्षण इज प्रश्न। जो आप पेशेंट से पूछते हैं, जो आप इससे डीप हिस्ट्री टेकिंग जिसको हम कहते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ये पहले दो जो है वो आपके प्रत्यक्ष प्रमाण में आते हैं, दर्शन और स्पर्श। बट प्रश्न में आपको, यू आर नॉट वेरी श्योर कि आपको पेशेंट 100% सही इंफॉर्मेशन देगा या नहीं, इसलिए इसमें आपको थोड़ा अनुमान प्रमाण यूज करना पड़ता है। एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन पेशेंट नहीं देगा, बिकॉज समटाइम्स आपके पास कोई नया पेशेंट आया है, कोई फर्स्ट टाइम आया है जो आपको जानता नहीं है, but if that person is not very comfortable with you, he or she may not share their complete lifestyle information with you, जिसकी वजह से आपका थोड़ा सा डायग्नोसिस करने में प्रॉब्लम हो सकता है। मे बी पेशेंट आपको ना बताए कि वो स्मोक करते हैं या वो ड्रिंक करते हैं या उनकी लाइफस्टाइल कैसी है। तो ये सारी चीजें आपको बहुत डीप हिस्ट्री टेकिंग में पता करनी चाहिए। आपको पेशेंट की 100% दिनचर्या पता होनी चाहिए। सो दिस इज वेयर आयुर्वेद कम्स इन पिक्चर इन अ वेरी इंपॉर्टेंट वे, कि हमने जो भी हम पेशेंट के बारे में हम जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे उतना ज्यादा इजीली हम उसके व्याधि का हेतु समझ पाएंगे। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच वी शुड बी कंसिडरिंग व्हाइल टेकिंग हिस्ट्री। विद दैट आप उसके प्रीवियस हिस्ट्री, जो भी डिजीजेस, अगर किसी को कुछ रिसेंटली हुआ है या कोई अभी जैसे कि हम करंट हेल्थ इश्यूज में हम कोविड हुआ है या नहीं पूछ सकते हैं, और फैमिली हिस्ट्री पूछ सकते हैं, किसी को डायबिटीज है, किसी को ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, किसी की फैमिली में स्ट्रोक या कैंसर की हिस्ट्री है, ये सारी चीजें हम फैमिली हिस्ट्री में से पूछ सकते हैं। प्लस recent injury, if there is any surgery, किसी की recently with any age you can have appendix surgery, किसी को hospitalization हुआ है due to COVID, अभी young individuals are also hospitalized, तो ये सारी चीजें हम पूछ सकते हैं। प्लस देर आर मेनी पीपल नाउअडेज जो अपने आप ही सेल्फ मेडिकेट करते हैं, तो वो कोई ना कोई सप्लीमेंट लेते हैं। सो वी नीड टू आस्क देम ऑल्सो कि आप कौन से सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, आपको किसी दवाई की या किसी फूड की एलर्जी है या नहीं। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप अपनी ट्रीटमेंट प्लान करेंगे, आप जब डायग्नोस करेंगे, तो ये करंट मेडिकेशन, पेशेंट की एलर्जीज, ये आपको ध्यान में रख के आपको अपना मेडिसिन देना है, so that you are able to avoid any ADR. ADR is adverse drug reaction. तो ये हमें अवॉइड करना है। ओके, सो व्हाई डू वी रियली नीड दिस आयुर्वेद प्रिंसिपल्स? हमें ये त्रिविध परीक्षण क्यों करना है, क्यों इम्पोर्टेंट है ये? तो इसकी वजह से हमें स्टेप बाय स्टेप हम एक व्याधि को और रुग्ण को दोनों को समझ सकते हैं। हमें हेतु यानी कि कॉज ऑफ द डिजीज बहुत इजीली समझ आ जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट आयुर्वेद में है कि हम जब हमें हेतु समझ आता है तो हम उसको स्टॉप करने के लिए ही सब मेहनत करते हैं। सो निदान परिवर्जन इज वन ऑफ द बेस्ट लाइंस ऑफ ट्रीटमेंट एज पर आयुर्वेद। अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट वी अंडरस्टैंड कि पेशेंट की कंडीशन अभी कैसी है, फिजिकल स्टेट कैसी है, मेंटल स्टेट कैसी है। अगर फिजिकल स्टेट में आप समझ ही सकते हैं, अगर किसी को जैसे कि कुछ व्रण है या किसी को सोरियासिस है, तो वो आप सारी चीजें फिजिकल एग्जामिनेशन में पता कर सकते हैं। मेंटल स्टेट में ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ओबेसिटी का पेशेंट है, that patient for sure has a very poor relationship with food, with their eating habits. तो वो अगर कुछ डिप्रेशन है या उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो वो ज्यादा भी खा सकते हैं या वो कम भी खा सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को काउंसलिंग की उसी वक्त बहुत जरूरत होती है। तो ये आप उस पेशेंट की कंडीशन जब आप समझ सकते हैं, तो उस हिसाब से आप उसको काउंसलिंग कर सकते हैं, डायग्नोसिस आपका एक्यूरेट होगा और आपका ट्रीटमेंट प्लान भी उसी के हिसाब से एक्यूरेट होगा। बिकॉज आप पेशेंट की दिनचर्या भी जान सकेंगे, जान के आप उसके बाद ही आप उसके उसके दिनचर्या में जो भी सूट हो रहा है उस हिसाब से आप मेडिसिन भी दे सकते हैं। सो एज पर ओवरऑल आयुर्वेद इज कंसर्न, Ayurveda is very, very customized line of treatment, line of medicine, which is very useful in today's day and age, right? So just for this is only for new doctors कि अगर आपने अभी जस्ट अपना नया क्लिनिक स्टार्ट किया है, आपको पता नहीं आप कैसे कंसल्ट करेंगे, आपको पता नहीं आपके पास पेशेंट आएगा तो आपको क्या करना है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप अपने पेशेंट के लिए, आप अपने ओवरऑल क्लिनिक के लिए अपॉइंटमेंट सिस्टम तैयार कीजिए।
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन दो यू आर कंसल्टिंग ऑनलाइन, आप अपना टाइम डिसाइड कीजिए। अगर आप सुबह 10 बजे से 1 बजे तक पेशेंट देखने वाले हैं, तो उस वक्त आप और कोई काम नहीं कीजिए। आप और कोई मे बी डोंट अटेंड एनी अदर इवेंट्स, डोंट कंसल्ट एनीवन एल्स। आप उसी टाइम पे उसी पेशेंट के लिए आप अपना टाइम दीजिए। हर पेशेंट के लिए आप एक टाइम स्लॉट डिसाइड कीजिए। इफ यू हैव, अगर आपने डिसाइड किया कि आप आधे घंटे में एक पेशेंट देखेंगे, आप उस पेशेंट को आधा घंटा डेडिकेटेडली दीजिए। नया पेशेंट अगर आपका 10 बजे आपका नया पेशेंट है, तो अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको 10:30 तक यही पेशेंट देखना है, तो आप बीच में कोई दूसरा पेशेंट मत लीजिए। उनकी अपॉइंटमेंट कीप इट वेरी वेरी प्रॉपर, बिकॉज if you respect someone else's time, they will be respecting your time and they will be respecting you. So this is very essential. Then give a self-assessment form to the patient. So this is what I follow in my practice and I will request everyone else, suggest everyone else to go for this. एक छोटा केस पेपर बनाइए या तो आप एक गूगल फॉर्म बनाइए जो आप अपने पेशेंट को आपके यहाँ कंसल्टेशन होने से पहले भेजिए। जब आप ये फॉर्म भेजते हैं, इसमें आप पेशेंट के बेसिक डिटेल्स सारे कलेक्ट कर लेते हैं। पेशेंट का नाम, एड्रेस, ऑक्यूपेशन, एज, वेट, करंट, वट एवर करंट हेल्थ कंप्लेंट जो उनको अपने वर्ड्स में डालना है। उनको क्या प्रॉब्लम है वो अपने वर्ड्स में आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो वो आपके लिए पेशेंट आने से पहले यू ऑल्सो हैव एन आइडिया कि आपको कौन से व्याधि को ट्रीट करना है। व्याधि अगर आपके दिमाग में सेट हो गया है, तो आपके सामने जब पेशेंट आएगा, तो आपका हाफ काम उधर ही रेडी रहता है जब आपको पेशेंट से कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सेम आप उसी वक्त आप असेसमेंट फॉर्म के साथ कुछ रिपोर्ट्स होंगे तो वो भी उनको भेजने के लिए कह सकते हैं। तो दिस विल सेव योर टाइम, दिस विल सेव द पेशेंट्स टाइम। जब आप पेशेंट से मिलते हैं, जस्ट मीट देम विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड, मीट देम विद अ स्माइल, लिसन टू देयर कंप्लेंट्स। if you are a patient listener, then you will have more patience. So this is really important because patient को half of the time they want the doctor to listen to you. सबसे ज्यादा क्या होता है कि कोई भी पेशेंट अगर एलोपैथी के क्लिनिक में जाता है, तो दे एंड अप पेइंग 1,000 2,000 रुपीज कंसल्टेशन की फी, और डॉक्टर उनसे सिर्फ 10 मिनट बात करते हैं। वो भी पेशेंट को देखते नहीं है इतना, वो जस्ट रिपोर्ट देखते हैं और फटाफट प्रिस्क्रिप्शन रेडी करके चले जाते हैं। पेशेंट इज नॉट वेरी सेटिस्फाइड, उनकी एक्सपेक्टेशन मैनेज नहीं होती है ऐसे केसेस में। सो हाउ कैन वी बी डिफरेंट एज एन आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स? वी कैन बी रियली डिफरेंट बिकॉज जब हम दर्शन परीक्षण करते हैं, तब हम उनकी कंप्लेंट सुन सकते हैं। हम उनकी उनके जो भी प्रॉब्लम्स हो, वो आप समझ के आप उनकी मेंटल हेल्थ का भी असेसमेंट उसी वक्त कर सकते हैं। और पेशेंट फील्स रियली गुड, पेशेंट फील्स मोर कनेक्टेड विथ यू बिकॉज यू आर देयर टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स। और केस पेपर आप अपने एंड से साइड बाय साइड फिल कर सकते हैं जब आप उनसे बात करते हैं। आप कुछ नोट्स बना सकते हैं जब आप पेशेंट से बात करते हैं, जिससे पेशेंट को ये लगता है कि यू आर रियली लिसनिंग, यू आर रियली इनटू हिज प्रॉब्लम, और आप उनकी प्रॉब्लम को कितना डिटेल में स्टडी कर रहे हैं कि आप उन्हें 100% सॉल्व कर सकते हैं। दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज योर वन ऑन वन कंसल्टेशन विद द पेशेंट creates a better rapport, better connection between you and the patient. When you are talking to the patient, when you are done with the darshan parikshan, आप स्पर्श परीक्षण फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। उसके बाद आप क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर सकते हैं, राइट? देन मे बी यू कैन ड्यूरिंग दैट टाइम गो थ्रू द रिपोर्ट्स पढ़ के आपको अगर लगता है कि इसमें कोई एडिशनल इन्वेस्टिगेशन कराना है, या आपको लगता है कि मे बी ब्लड रिपोर्ट में कुछ ब्लड टेस्ट मिसिंग है जो उस मे बी निदान के लिए यूजफुल रहेंगे, तो आप वो भी सजेस्ट कर सकते हैं। अपने केस पेपर पे पेशेंट का डायग्नोसिस आप लिखिए, आप आयुर्वेद के हिसाब से डायग्नोस कीजिए और अपना डायग्नोसिस पेशेंट को बताइए। सो बी वेरी ट्रांसपेरेंट, वेरी ओपन विद द पेशेंट। मोस्टली क्या हो जाता है कि पेशेंट को पता नहीं चलता है उनको क्या प्रॉब्लम है। आधे से ज्यादा पेशेंट आपके पास आएंगे, वो कुछ ना कुछ गूगल करके ही आने वाले हैं। अपने दिमाग में कुछ अलग कंसेप्ट लेके पेशेंट आता है। आपको उस उनका पहले तो काउंसिल करके ये बताना है कि वॉट एवर यू हैव गूगल्ड, जस्ट कीप इट असाइड।
आपने जो निदान किया है, आपने जो डायग्नोसिस किया है, आप जो उस पेशेंट की केस समझ सकते हैं, वो उसको अपने हिसाब से बताइए। बिकॉज जब तक आप अपनी रुग्ण को बताते नहीं है उनको क्या प्रॉब्लम है, तो वो उसके लिए 100% एफर्ट्स नहीं देंगे। मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स से सुने हैं ये प्रॉब्लम्स कि हम पेशेंट को दवाई प्रिस्क्राइब कर देते हैं, हम पेशेंट को मेडिसिन बता देते हैं, बट देयर इज नो रिजल्ट। या तो पेशेंट ने दवाई ले ली बट ही डिड नॉट कंज्यूम इट, खाई ही नहीं मेडिसिन, बिकॉज दे डिड नॉट फील द नीड, राइट? सो ये आपको पेशेंट को इस चीज का इम्पोर्टेंस बताना है। इवन दो इट इज अ बेसिक अम्ल पित्त जैसी बेसिक बीमारी भी अगर आपके पास आती है, तो आपको अम्ल पित्त का पथ्य अम्ल पित्त आपको क्यों हो रहा है, आपको उसके लिए क्या करना चाहिए, ये सारी चीजें पेशेंट को अगर आप समझाते नहीं है, तब तक पेशेंट ये फॉलो नहीं करेगा, राइट? सो एक्सप्लेन योर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। आपको इसके बाद आप अपना मेडिसिन दे सकते हैं, उसके बाद आप पंचकर्मा सजेस्ट कर सकते हैं, आप पथ्य अपथ्य डिटेल में बता सकते हैं, और फिर पेशेंट के कुछ क्वेश्चंस होंगे तो वो आप सुनिए और आप उन्हें आंसर कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप किसी पेशेंट का क्वेश्चन आंसर नहीं कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि मे बी दिस इज आउट ऑफ योर स्टडी, आपने इसके बारे में पढ़ा नहीं है, तो आप उन्हें क्लियरली बताइए कि व्हाट यू आर आस्किंग is something which I need to focus more on. अब आप नेक्स्ट टाइम आएंगे तो आई विल डेफिनेटली स्टडी मोर एंड गिव यू द आंसर, बिकॉज आप अगर ऑनेस्टली बताएंगे तो ही पेशेंट आपके साथ ज्यादा कनेक्ट होगा। अदरवाइज दे विल एंड अप सर्चिंग एवरीथिंग ऑन गूगल एंड इट विल नॉट बी ऑफ एनी यूज, राइट? सो फॉलो अप इज रियली इम्पोर्टेंट। सो फॉलो अप आपको हमेशा पेशेंट का विद इन अ वीक डेफिनेटली लेना चाहिए। So before I wrap this session, don't forget to, ये चीजें आपको बिल्कुल भूलनी नहीं है to achieve attain success in your clinical practice. So the most important thing is patient counseling. आपको patient को counsel करना ही है with anything they might have any questions. आप उन्हें counsel कीजिए, आप उन्हें उनके questions का answer कीजिए, be available for the patient. अगर आप पंचकर्मा क्लिनिक है आपका, अगर आपने किसी को बस्ती या वमन या एनीथिंग आपने सजेस्ट किया है, आप उसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस एक्सप्लेन कीजिए। इफ यू हैव अनदर स्टाफ टू एक्सप्लेन, आस्क देम टू सिट विद देम, एक्सप्लेन द होल प्रोसेस। कुछ लोग जो होते हैं आप उनको बस्ती के बारे में बताते हैं बट दे डोंट कम टू यू बिकॉज वो अपने आप ही कुछ गूगल करके देख लेते हैं और फिर वो आना नहीं चाहती। तो आप उसकी प्रोसेस एक्सप्लेन कीजिए, आप उसके फायदे बताइए, वो आप क्यों कर रहे हैं, उससे पेशेंट के बारे में, पेशेंट के व्याधि का अवस्था कैसे चेंज होने वाली है, ये सारी चीजें आप पेशेंट को एक्सप्लेन कीजिए। देन बी एम्पैथेटिक एंड अंडरस्टैंडिंग। आपको एम्पैथी होना इज वन ऑफ द की थिंग्स फॉर अ डॉक्टर एज पर आयुर्वेद ऑल्सो, एज पर चरक संहिता ऑल्सो। तो आपको एम्पैथी पेशेंट के लिए होना, आपको पेशेंट को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, डोंट फॉरगेट टू टेक योर कंसल्टेशन फीस। आप में से बहुत लोग हैं जो बाद में कहते हैं कि हमारी प्रैक्टिस इतनी अच्छी नहीं चल रही है, पेशेंट पैसे ही नहीं देते हैं, बिकॉज आप उनसे लेते नहीं हैं। इफ यू आर गिविंग समवन हाफ एन आवर ऑफ योर टाइम, ऑफ योर एक्सपर्टीज, ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, आधे घंटे में अगर आप उनका 100% डायग्नोस करके आप उनको कोई दवाई दे सकते हैं, तो उसके लिए आपने बीएमएस के 5 साल, एमडी के 4 साल, ये सब 9 8 9 साल की मेहनत लगाई है, इसीलिए आप आधे घंटे में डायग्नोस कर पा रहे हैं। सो उसके लिए दिस इज योर एक्सपर्टीज, दिस इज योर स्टडीज, so that is why you should be taking the consultation fees which is your right to take. तो वो आप डेफिनेटली लीजिए। फ्री में अगर आप किसी को कुछ भी ज्ञान देंगे तो दे विल नॉट बी एबल टू यूज इट और यूटिलाइज इट। आप डिस्काउंट हमेशा दे सकते हैं, दैट इज टोटली फाइन, बट इफ यू गिव एवरीथिंग फॉर फ्री द पेशेंट माइट नॉट अंडरस्टैंड द वैल्यू। सो दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। एंड वंस द पेशेंट गोज फ्रॉम योर क्लिनिक, 48 आवर्स में जैसे उनकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गई है, जैसे आज आपने कुछ दवाई दी, अगर आपने किसी पेशेंट को त्रिफला चूर्ण भी दिया है, तो भी 2 दिन में आप उन्हें फोन करके अपने असिस्टेंट से या आप खुद कॉल करके पूछिए, इज इट हेल्पिंग यू? क्योंकि किसी ऐसा भी हो सकता है कि अगर पेशेंट को डोज समझ ना आए और उन्होंने खुद ज्यादा अमाउंट में त्रिफला चूर्ण खा लिया, या कोई भी लैक्सेटिव या कोई भी मेडिसिन ज्यादा कम ज्यादा हो गया,
तो देर आर चांसेस ऑफ उपद्रव जो आपको ही हैंडल करने हैं। तो अगर आप ये 48 आवर्स में उनको कॉल करके पूछ सकते हैं कि हाउ आर यू फीलिंग, डिड यू स्टार्ट द मेडिसिन, इन जनरल अगर आप ये सब चीजें पूछेंगे तो यू two things happen, you create a better connection and you are able to avoid कोई भी अगर इसका साइड इफेक्ट अगर होना है तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। So this is a very important step for you. And then in 15 days, maybe in a week or 15 days, आप follow up लीजिए. If you follow all these things, definitely your patients are going to retain with you. आपका फुटफॉल भी बढ़ेगा क्लिनिक में, आपके पेशेंट्स आपको छोड़ के और कहीं नहीं जाएंगे, और पेशेंट ऑल्सो बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ देमसेल्व्स। मतलब अगर आप किसी पेशेंट को ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर पाते हैं, आप उनको अपना अच्छे से टाइम दे पाते हैं, तो पेशेंट डेफिनेटली अच्छा आउटकम दिखाता है। सो विथ दिस I thank you for your patient listening. And if you have any doubts, anything, we can talk in the chat box. आप वहाँ पे अपने questions डालिए. If anyone has any questions? What's the best test in sciatica? So we have a document made for sciatica, जिसमें आप sciatica में क्या treatment करने हैं, क्या टेस्ट यूज करने हैं, तो ये सारी चीजें आप उसमें डाल सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और साइटिका के लिए व्हाट आई रेकमेंड बेसिकली इज द स्ट्रेट लेग टेस्ट। और जैसे पेशेंट आपके यहाँ क्लिनिक में आता है, आप देख सकते हैं कि वो कैसे चल रहा है, तो उस हिसाब से आप यू कैन अंडरस्टैंड कि हाउ हाउ व्हाट इज द लेवल ऑफ साइटिका और व्हाट इज द प्रॉब्लम दे आर फेसिंग। वी विल बी शेयरिंग दिस डॉक्यूमेंट विथ यू फॉर साइटिका। आप हमारे पार्टनरशिप प्रोग्राम में से आपके जो मैनेजर है आप उनको मैसेज कर सकते हैं। एंड इफ यू आर नॉट in the partnership program, I would request you to join the partnership program to receive all the details, all the webinars like this. Any other questions? किसी को क्लिनिक में पेशेंट्स देखने में कोई प्रॉब्लम या ओके बात रक्त की ऑल्सो हमारे पास उसका भी डॉक्यूमेंट रेडी है, इवन दैट वी कैन शेयर विथ यू। आपको अगर किसी इंडिविजुअल डिजीज के बारे में पूछना है तो आप एक मेल टाइप करके हमें भेज दीजिए, हम आपको सारे डॉक्यूमेंट्स उसमें भेज सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है और उसको ट्रीटमेंट कैसे करना है। बिकॉज दोज हु आर अ पार्ट ऑफ आवर पार्टनरशिप प्रोग्राम, एवरी वीक हम कोई ना कोई डिजीज पे एक पीडीएफ बना के उनके साथ शेयर करते हैं। जैसे कि पीसीओडी है, पीसीओडी का भी डॉक्यूमेंट हमारे पास रेडी है। सो अगेन ईच एंड एवरी डिजीज अगर आप देखें तो ये पीसी लाइक फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट पीसीओडी नाउ, कि पीसीओडी में भी आपके पास अलग अलग टाइप के पेशेंट्स आएंगे। जैसे एलोपैथी में एक ही डिजीज है कि पीसीओडी, आयुर्वेद में पीसीओडी में भी रुग्ण के हिसाब से अलग अलग टाइप के ट्रीटमेंट प्लान किए हैं। तो आप किसी एक ही टाइप का ट्रीटमेंट या एक ही टाइप का प्रोटोकॉल उसमें फॉलो नहीं कर सकते। उसमें आपको 10-15 टाइप के मेडिसिन हैं जो आप धीरे धीरे यूज कर सकते हैं। अलग अलग टाइप के मेडिसिन आप पेशेंट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। फॉर दैट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज टू अंडरस्टैंड द पेशेंट्स लक्षणों एंड अवस्था। तो अगर आपके पास, क्योंकि पीसीओडी में आपके पास ऐसे भी पेशेंट आ सकते हैं जिनका कष्टार्तव है, कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनका कष्टार्तव नहीं है बट उनको पीरियड्स बहुत स्कैंटी है, तो अनार्तव वाले भी पेशेंट्स हैं। तो उस टाइम आप दोनों को सेम मेडिसिन नहीं दे सकते। सो यस, डॉक्टर कीर्ति इज मैसेजिंग हमारे ग्रुप। आप में से जो भी पार्टनरशिप प्रोग्राम में ऑलरेडी हैं, आप प्लीज मैसेज कर दीजिए, हम आपको पीडीएफ शेयर कर लेंगे। जो पार्टनरशिप प्रोग्राम में नहीं है, आई वुड रिक्वेस्ट देम टू ज्वाइन द पार्टनरशिप प्रोग्राम।
because such sessions and more other sessions like that are definitely complementary for the partner doctors. Anyone has any doubts about Rugna Parikshan? If there are new doctors or someone who has just started their practice, please ask their doubts. I'll be happy to help you. Please type your feedback about the session right now. अगर आपको इस सेशन से कुछ फायदा हुआ, आपको ऐसा लगा आपकी कुछ नॉलेज रिफ्रेश हुई, तो प्लीज डू शेयर योर फीडबैक ऑन द चैट बॉक्स. Yes, Dr. Gaurav Kaushik. Yeah, we can share the recording. We will be also happy to share the PPT which I have showed you all just now. वो भी हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं अगर आपको हैंडी टिप्स जो आपको चाहिए, अगर जो न्यू डॉक्टर्स है स्पेशली फॉर देम, और जो जीपी कर रहे हैं जिनको आयुर्वेद प्रैक्टिस में वापस आना है, उनके लिए भी ये पीडीएफ, ये पीपीटी बहुत यूजफुल रहेगा. इट विल रिवाइज योर कॉन्सेप्ट ऑफ निदान पंचक एंड रुग्ण परीक्षण एंड ओवरऑल एस्पेक्ट्स ऑफ क्लिनिकल एग्जामिनेशन. Somebody had raised their hand. आपको कुछ पूछना है तो प्लीज टाइप कर दीजिए. It's hard for me to understand patient Agni. Okay, so what I do is I'll tell you my concept, how I understand Agni. तो मैं पेशेंट से पूछती हूँ उनको दिन में सबसे तेज भूख कब लगती है. ऐसा क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं वो आईटी सेक्टर में या डेस्क जॉब वाले ही होते हैं. सो व्हाट हैपेंस इज कि उनको पता नहीं चलता दे आर हंग्री जस्ट बिकॉज इट्स लंच टाइम. वो खाना खा लेते हैं. आइडियली उनको भूख बहुत वियर्ड टाइम पे लगती है या तो नहीं लगती है, और जब लगती है तो मोस्टली इट्स इन द इवनिंग टाइम, राइट. सो अंडरस्टैंडिंग अग्नि इज वेयर फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि उनका मल विसर्जन कैसा है, आर दे एबल टू एम्प्टी देयर बाउल्स नेचुरली और नॉट, वो आपको पहले समझना है. उसके बाद आपको उनसे पूछना है कि व्हेन व्हाट इज द टाइम व्हेन दे फील रियली हंग्री, हंगर लेवल, और एक बार जब वो खाना खा लेते हैं, पेट भर खाना खाने के बाद उनको वापस भूख कब लगती है, सेम टाइम की तेज भूख कब लगती है. वो जो बीच का गैप है, अगर वो 3-4 घंटे से ज्यादा हो या 4 घंटे हो, इट मीन्स उनका अग्नि नॉर्मल है, दे हैव अ गुड डाइजेशन. सो विद understanding this digestion part, I can give them medicines accordingly. But mostly ऐसा होता नहीं है. पेशेंट्स को पता ही नहीं चलता है कि उनको भूख कब लगी है, तेज भूख लगती है या नहीं, ये भी वो बता नहीं सकते हैं. तो आपको पहले उनको बोलना है कि आप अपने ये हंगर टाइमिंग्स फाइंड आउट कीजिए और उस टाइम आप क्या खाते हैं. मतलब ऐसा भी हो सकता है कि किसी पेशेंट को इवनिंग में भूख लगी है और उन्होंने एक बर्गर खा लिया, दे आर फीलिंग ओके, उनको उनके लिए वो तेज भूख है. बट दैट इज नॉट ऑलवेज द केस. तो इस केस में उनका अग्नि विषम है. तो अगर आपको लगता है कि आप उनका अग्नि करेक्ट करना चाहते हैं, तो आप उनका डेली डाइटरी रिकॉल लीजिए. वो दिन भर में क्या क्या खाते हैं, कब कब खाते हैं. सो एटलीस्ट आप उनका 3 दिन का डाइटरी रिकॉल लीजिए. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड देयर ओवरऑल डाइजेशन मेटाबॉलिज्म. अगर उनको भूख कम लगती है बट जस्ट वो वैसे ही खा रहे हैं, मधुर रस खाना ज्यादा चाहते हैं, या फिर तामसिक टाइप ऑफ फूड ज्यादा खाना चाहते हैं,
उसके बाद उनको अगर खाने के बाद फ्रेश नहीं लगता है, डल ही लगता है, ऐसा लगता है कि अब बहुत थकान आ गई है, अगर ये सारी चीजें प्रॉब्लम है, तो इसमें उनका अग्नि बहुत मंद है. सो दिस इज अ सिंपल वे टू अंडरस्टैंड दैट पर्सन अग्नि. आप उनसे 3 दिन का, मिनिमम 3 दिन का डाइटरी रिकॉल लिख के लीजिए. यू शुड गिव दिस एक्टिविटी टू योर पेशेंट कि सुबह उठने के बाद रात को सोने तक आपने दिन में क्या क्या खाया, कितने बजे खाया, और आपको भूख कब लगी. ये अगर आप 3 दिन के लिए कलेक्ट कर सकते हैं पेशेंट से इंफॉर्मेशन, so it will help you to understand their agni better. Hope I cleared your basic doubt. Okay. Anyone else wants to ask anything? Any other questions? Also, suggestions for further webinar are also welcome here. आपको किसी और टॉपिक पे वेबिनार अगर चाहिए तो आप प्लीज इधर मैसेज कीजिए. So I will prepare another topic and present it to you all. We can discuss that also next week maybe. ऐसा कोई स्पेसिफिक टॉपिक है या कोई आयुर्वेद की कंसेप्ट आप जानना चाहते हैं, तो we can talk about that as well. आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं. Okay, for diabetes also we have a PDF that can also be shared with you. Okay, so this is all disease you all are talking about. Okay, interesting. Webinar on stomach problems, gut health. Okay, so डॉक्टर ओम, ये जो गट हेल्थ वाला प्रॉब्लम है, यहाँ पर हम कंसेप्ट पहले डिस्कस, मुझे आई वुड लाइक टू डिस्कस द कंसेप्ट विद यू ऑल कि हम अग्नि और मेटाबॉलिज्म इसको कैसे कोरिलेट कर सकते हैं. वी कैन डिस्कस समथिंग लाइक दैट आल्सो. वंस यू अंडरस्टैंड प्रॉपर गट हेल्थ और हाउ आवर गट एंड ब्रेन आर रिलेटेड, तो ये हम आयुर्वेद के पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं. सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स वी कैन स्टार्ट. दिस इज अ गुड सजेशन. सोरियासिस, यस श्योर. स्किन हेल्थ, स्किन डिजीजेस के बारे में भी वी हैव अ पीडीएफ, एंड वी कैन टॉक अबाउट जनरल प्रॉब्लम्स इन और जनरल health issues for skin and hair, and whatever medicines or any other measures which we can take for that, we can discuss that also in a bit. Good suggestion. Any concepts which you think that you want to apply in your clinical practice which you are not able to understand, like अभी हमने डिस्कस किया अग्नि, तो और जैसे अभी हमने त्रिविध परीक्षण डिस्कस किया कि इसको हम क्लिनिकली कैसे अप्लाई कर सकते हैं. ऐसा कोई कंसेप्ट है जिससे आप, which you are also confused about, which you want to use it in your clinical practice, then we can also have a webinar for this one. Okay, I think, okay, Dashavid Pariksha. Okay, we can do that in detail.
Okay, how to select drug of choice. So for selecting drug of choice, you should first understand the treatment principle that you will be using there. आपको संतर्पण करना है, आपको अपतर्पण करना है, या आपको भ्रूण करना है, या आपको मे बी शोधन करना है. अगर आपको ऐसे कुछ भी पहले ही आपको वो डिसाइड करना है कि आप क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यूज करने वाले हैं. उसके बाद आप ड्रग ऑफ चॉइस इजीली डिसाइड कर सकते हैं. एंड टू सिलेक्ट ड्रग ऑफ चॉइस, इफ यू वांट टू नो कि हम चरकोक्त गण कैसे यूज करें, या तो हमारे मे बी एक डिजीज के लिए अगर हमारा कोई क्लासिकल मतलब जो ग्रंथोक्त मेडिसिन है वो कैसे यूज करें, प्लस देर आर डिफरेंट मेडिसिन फॉर लाइक प्रोप्राइटरी मेडिसिन जो भी हम जनरल प्रैक्टिस में यूज करते हैं. तो वो ड्रग ऑफ चॉइस और मेडिसिन ऑफ चॉइस उसके बारे में भी वी कैन हैव अ वेबिनार और डिस्कशन. बट अगेन दैट इज डिफरेंट फॉर ईच एंड एवरी डिजीज. तो वो हम कॉमन डिजीजेस की एक लिस्ट बना के हम उसमें ड्रग ऑफ चॉइस वाला वेबिनार कर सकते हैं. थैंक यू डॉक्टर ओम फॉर दैट सजेशन. इट्स रियली इंसाइटफुल. Okay, since I don't think we have any more questions, those who are new, please join the partnership program. And the link has been shared with you. And if you have any further questions, any queries, or any suggestions for upcoming webinars, please share it with us, and we will be happy to address them and make those webinars happen for you all. Thank you so much for joining us. Thank you for your patient listening. Do stay in touch.